हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एसएसटीओ का फुल जो है मॉक पेपर कंडक्ट किया था। आज हम पब्लिक लाइजन ऑफिसर यानी कि पीएलओ जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड में जॉब्स आई हैं उसका फुल मॉक पेपर अटैम्प्ट करेंगे। तो आप क्या करें, अपने पास पेपर रखें, पेन रखें, क्वेश्चन को पढ़ के आप सॉल्व करें और फिर मेरे बताए हुए ऑप्शन के साथ मैच करें, फिर काउंट करें कि आपके कितने सही थे। और इससे आपको जो ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और कौन सी अभी भी एरियाज़ हैं जिसको आप कवर करें, स्ट्रेंथन करें। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 हमारा इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 1, द सीईओ स्पीच वाज डेलिबरेटली डैश full of vague promises and devoid of any concrete figures or timeliness, which left the shareholders feeling uneasy. Options are pellucid, equivocal, nebulous, and transient. The right option is option C. Next question is, select the synonym of profligate, spendthrift, extravagant, parminous, prodigal. So the right option is option C, parminous, parsimonious. Next, question number 3. Despite initial dash, the new policy was implemented with dash, surprising its critics who had expected hesitation, acclaim, trepidation, resistance, hilarity, support, reluctance, skepticism, ambiguity. So the right option is resistance, hilarity, option B. Next question, replace the phrase with a one-word substitute. A person who deliberately stirs up public feelings for personal gain, visionary, demagogue, maverick, or partisan. So the right option is B. Next question, the author's dash writing style, which often used 10 words, where 2 would suffice, tried the patience of even the most dedicated readers. So options are laconic, succinct, prolix, terse. So the right option is option C, prolix. फिर हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। Concept of fiscal decentralization involves the transfer of expenditure and revenue responsibilities from the central government to subnational levels. Proponents argue that it enhances economic efficiency by tailoring public service delivery to local preferences, improves accountability as governments are closer to their constituents, and fosters jurisdictional competition. In the context of Pakistan's provinces such as Sindh, this would mean empowering bodies like the Sindh Revenue Board further. However, critics caution against potential pitfalls. Significant disparities in fiscal capacity between richer and poor regions can lead to unequal service provision, exacerbating regional inequalities. This is also the risk of inadequate administrative capacity at the local level to handle complex tax assignments. Furthermore, without a robust equalization transfer system from the federal government, fiscal decentralization might merely shift rather than resolve the challenges of public finance. The success of such model, therefore, hinges not on the act of devolution itself, but on the strength of institutional framework that supports it. अब इस पे क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ पैसेज इज टू एडवोकेट फॉर द कंप्लीट फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल पाकिस्तानी प्रोविंसेस, criticize the Sindh Revenue Board for its administrative shortcomings, present a balanced analysis of the potential benefits and drawbacks of fiscal decentralization, और explain the historical devolution of fiscal policy in Pakistan. So इसका जो right option है वो C है. Next हमारा है question number 7. According to the passage, which of the following is the potential disadvantage of fiscal decentralization? Enhance accountability in local government, the possibility of widening regional inequalities, tailoring services to local preferences, fostering competition between jurisdiction. तो इसका जो right option है वो option B है. Question number option B is the correct. Next question है हमारा, the word exacerbating in the passage is closest in meaning to mitigating, resolving, aggravating, stabilizing. So the right option is C. Next, the passage suggests that the success of fiscal decentralization is primarily dependent on the political party in power at the central government, the overall tax to GDP ratio of the country, the quality and strength of the supporting institutional framework, the population size of the subnational regions. So the right option is C. Next question, the author's attitude toward fiscal decentralization can best be described as uncritically enthusiastic, dismissively hostile, measured and cautious, ambient and confused. So the right option is measured and cautious. Next question is, the lawyer's argument was dash carefully constructed with irrefutable evidence which left the opposition with no room for rebuttal. Specious, fallacious, cogent, or nebulous. The right option is C, cogent. Next question is, select the antonym for abeyance, suspension, dormancy, continuation, or intermission. So the right option is continuation.
Next question. The government's new tax initiative was widely perceived as dash, disproportionately affecting low income groups while offering dash to large corporations. Equitable penalties, regressive concessions, progressive burdens, impartial incentives. So the right option is B. Next question number 14. Choose the word that is most similar in meaning to assuage, aggravate, intensify, alleviate, or provoke. So the right option is C. Alleviate. Next question. Choose the antonym of the austere, harsh, luxurious, simple, stern. So इसका जो antonym है वो luxurious. Option B correct है. Next question is choose the correct one word substitution. A person who believes that God does not exist. Theist, atheist, pagan, mystic. तो atheist होता है. Option B correct है. Question 17. Despite his fame, he remained dash inaccessible to his fan. Arrogant, humble, reclusive, or dismissive. So option B correct है. Humble. Next question is the philanthropist was known for his dash generosity, often donating large sums to charities without seeking any public recognition. Parsimonious, frugal, munificent, pragmatic. So the right option is option C. इसका मतलब होता है generous. Question 19. The project's failure was dash to lack of funding and dash planning in its initial phases. Attributable, meticulous, scribed, prudent, imputed, haphazard, credited, strategic. So the right option is C. इसमें देखो जो दूसरे तीन ऑप्शन हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है और फेल्यूर की बात नेगेटिव के साथ कोरिलेट करती है, तो आपका ऑप्शन सी आएगा. Question number 20. The phrase to burn the midnight oil is an example of a simile, an idiom, a metaphor, a hyperbole. So इसका जो होता है ये an idiom है. ऑप्शन बी करेक्ट है. Question 21. Find the correctly spelled word. अब इस पर कॉमेडी की जो है ना डिफरेंट उन्होंने वो दिए हैं स्पेलिंग्स दिए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है. Question 22. Identify the idiom he spilled the beans means planted beans, revealed a secret, made a mess, spoke carelessly. तो इसका मतलब इसने एक सीक्रेट रिवील किया. Question 23. Choose the pair of words that best completes the analogy, metaphor, comparison, irony, conflict, contradiction, sarcasm और humor. तो ये contradiction को बता रहा है. Next, choose the antonym of venerate, revere, adore, despise, cherish. जो venerate मतलब किसी की तारीफ करना, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा despise. Next, his explanation was so dash that even experts struggled to follow it. Lucid, esoteric, transparent, pedestrian. So the right option is esoteric. अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन डिक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. ऑप्शंस आर 5% इंक्रीज, 5% डिक्रीज और 0% चेंज और 10% डिक्रीज. तो इसका राइट ऑप्शन है 0% चेंज. आप इसमें वो चेंज वाला फार्मूला लगा सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 27 क्वेश्चन है द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 84 एंड 12 respectively. If one number is 36, find the other one. So options are 24, 28, 18 and 32. The right option is 28. अब ये 28 कैसे आया? इनका एक रिलेशनशिप होता है, एक x नंबर है वो मल्टीप्लाई करो y नंबर के साथ तो बराबर होता है उनकी HCF मल्टीप्लाई LCM. ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है. आप ये फार्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ A/B इज़ 2:3 और B/3 इज़ 4:5 देन ABC रेशो. तो ये कंटिन्यूड रेशो वाला फार्मूला होता है. यहाँ पे A, ये फिर रेशो B, फिर रेशो C. तो यहाँ पे A और B का रेशो हमारे पास है 2:3, 2:3. उसके बाद B और C का रेशो है 4:5. तो अब जो हमारे पास लास्ट में रेशो आएगा वो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 8 हो जाएगा. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 15. तो हमारा 8, 12, 15 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36. व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 36. तो अब यहाँ पे सिंपल देखो, अगर कोई नंबर है वो 136 से डिवाइड हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली 136 के हो गया और प्लस रिमाइंडर उसका आ रहा है 36, यानी कि ये टोटल नंबर है. इसको आप 17 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर आएगा वो
2 आएगा। अब इस पे कैलकुलेशन है वो आप खुद ही कर सकते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 है। अच्छा, यहाँ पे 2 गलती से वो दोनों आ गए हैं। सही है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ 25% ऑफ नंबर इज़ 60 देन व्हाट इज़ द नंबर एक्चुअली। अब यहाँ पे आप वो फार्मूला लगाओगे एवरेज वाला फार्मूला, और उसमें जो है ना आपका ऑप्शन आ जाएगा बी 240। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज़ 12, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज़ 11, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 9 नंबर इज़ 14, व्हाट इज़ द लास्ट नंबर। तो इसमें आप ये इसको 12 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से माइनस करो ये 10 मल्टीप्लाई 11, और दूसरा भी माइनस करो 9 मल्टीप्लाई 14, और आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, जो है पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन द 6 आवर्स, बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ लॉन्ग विल टेक द फिल द टैंक। अब देखो, अगर ये 4 घंटे में जो है पूरा कर रही है तो 1 घंटे में ये 1/4 पूरा करेगी, और अगर ये 6 घंटे में खाली कर रही है तो ये 1/6 1 घंटे में काम करेगी। इनका आप अगर निकालोगे तो आपको मालूम होगा कि 1 घंटे में वो 12वां हिस्सा करेगी, यानी कि 12 घंटे जो है ना उसको काम लगेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन 33, द सम ऑफ फर्स्ट 10 जो है ना नेचुरल नंबर्स इज, तो ये 55 है, सॉरी ये 55 है। अब ये इस तरह से होता है, इसका ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 34, इफ़ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर रेड, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। all roses are roses, all roses are red, some flowers are roses, or none of these। so इसका जो राइट ऑप्शन है वो some flowers are roses, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 35, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 8, 15, 24 और फिर आपका 35 है। तो इसमें देखो पहले नंबर में उसने 5 ऐड किया, फिर 7, फिर 9, फिर जो है आपका उसने 11 किया, और फिर अब वो 13 करेगा, तो इसके हिसाब से 48, यानी कि सी या बी दोनों 48 है, जो भी करो, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है। उसके अलावा 36, अ मैन वॉक्स 15 किलोमीटर साउथ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 15, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे ये आपका जो है ना डायग्राम आ गया, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट से ये यहाँ पे 15 किलोमीटर आ गया साउथ में, फिर इसने लेफ़्ट पे 10 किलोमीटर किए, और फिर इसने 15 किए, यानी कि ये यहाँ पे आ गया। तो अब ये इनिशियली यहाँ से जो है ना ये 10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 है, और उसके अलावा जो है ना ये खड़ा कहाँ पे, ये वेस्ट में है, सही है। तो इसका 10 किलोमीटर वेस्ट में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 37 जो है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20 एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो देखो ये फार्मूला होता है इसका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या विड्थ कर दो, जो भी है। अब ये लेंथ इंक्रीज़ हो गई, यानी कि 1 से ये 1.2 हो गई, और ये जो है ना 20% से डिक्रीज़ हो गई, तो यानी कि ये 1 से 0.8 हो गई। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करते तो हमारा ये 100% आ रही थी, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 96% आ रहा है। तो इसका मतलब ये 4% जो है ना डिक्रीज़ हुआ ओवरऑल, तो यहाँ पे हमारा जो है ना 4% डिक्रीज़ आंसर है। उसके बाद फाइंड आउट द ओड वन आउट 2, 7, 3 और 5, 9, 11। तो इसमें देखो आपका जो 9 है वो आपका नॉन प्राइम नंबर है, बाकी सब प्राइम नंबर है। उसके अलावा 39 में एक, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 10, और उसके बाद इफ़ 18 इज एडिड टू द नंबर इट्स डिजिट गेट रिवर्स, व्हाट इज़ द नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो 2 डिजिट नंबर है तो उसमें एक आपका 10y होगा, ठीक है, और दूसरा उसका x होगा, यानी कि 21 है तो 2 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 1 21 फॉर एग्जांपल, सही है। अब ये जो है ना आपका है नंबर है, उसमें से जो डिजिट्स हैं यानी कि y प्लस एक्स, ये आपके 10 के बराबर है, सही है। और अब अगर हम इनमें इस डिजिट में 18 को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है इफ़ एडेड 18 टू द नंबर, तो हमारा जो है ना ये ऑर्डर चेंज हो जाता है पहले वाला, यानी कि 10y प्लस जो x था वो अब हो जाएगा 10x प्लस y। अब ये जो हैं आप अगर इनको देखो इस इक्वेशन से, आप इस इक्वेशन से आगे लेके चलो तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो हो जाएगी बेसिकली x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन है और फिर दूसरी यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है ना आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज़ 46, ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट है व्हाट कम इन द नेक्स्ट ACFGJO, तो इसमें जो है ना राइट ऑप्शन आपका SUTVU है। उसकी भी आप जो है ना लॉजिक फाइंड करके लगाएंगे। वो कैसे, पहले देखो इसमें 3 ऐड किया, फिर 5 और इस तरह से ये ऐड करता जा रहा है, लास्ट में जो है ना वो 6 ऐड करके उसको U कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 all rings are circles are spheres, conclusion all rings are spheres, some spheres are rings। तो कौन सी लॉजिक इसको फॉलो कर रही है, लॉजिक 1 2 या बोथ या नीदर। तो इसमें जो है ना बोथ, इसमें बोथ जो है ना इसको फॉलो कर रही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन 42 विच कंक्लूजन फॉलोज ऑल कैट्स आर मैमल्स सम मैमल्स आर डॉग्स, तो ऑल डॉग्स आर कैट्स सम मैमल्स आर कैट्स सम कैट्स आर डॉग्स, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सम मैमल्स आर कैट्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 43 द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 2 5 10 17 16, तो इसके बाद जो है 26, तो ऑप्शन है 35 36 37 38, तो ये हमारा 37 राइट ऑप्शन है। इसकी भी लॉजिक ये है कि पहले इसने 3 ऐड किया, फिर 5 फिर 7 फिर 9, अब जो है वो 11 ऐड करेगा, तो 26 में 11 ऐड करो 37 आ जाएगा। नेक्स्ट 44 हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 12 1 PM एंड 11 59 PM डू द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म 90 डिग्री एंगल। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो इसमें राइट जो ऑप्शन है वो 22 है। आप इसको करके देखिएगा कि कैसे जो है ना ये हो रहा है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि फ़लाँ जो है ना हमारा वो कांटा इधर खड़ा है, दूसरा इधर खड़ा है, तो उनके बीच में कितनी डिग्री बन रही है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 45 इफ़ 15 ऑफ इफ़ 15 ऑफ A इज़ 20% ऑफ B देन A रेशो P इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो सिंपल ये रेशो है, यानी कि एक दूसरे का ये रेशो पूछ रहे हैं, तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट है 4:3। क्वेश्चन नंबर 46 पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स वाइफ, ही इज़ वुमन हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि उसकी जो ग्रैंड फादर की वाइफ है तो वो उसकी ग्रैंड मदर हो जाएगी, और ग्रैंड मदर का एक ही बेटा है तो वो उसका फादर हो गया, और अगर वो फादर की डॉटर है तो वो उसकी सिस्टर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 47 द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज़ 5:2, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 1000, व्हाट इज़ फादर्स एज। तो सिंपल है, एक 5x मल्टीप्लाई 2x, ये दोनों की जो है ना रेशियोज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई करो तो वो 1000 के बराबर आना चाहिए। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये 10x² हो जाएगा और ये 1000। अब 10 एक ज़ीरो ख़त्म हो गया तो x² इक्वल्स टू 100। अब इसकी जो है ना अंडर रूट लेंगे हम तो हमें x का वैल्यू मिलेगा 10। सही है। अब फादर की एज 5x है तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 50 ईयर्स, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। Question 48 a train 150 meter long cross a pole in 10 seconds, how long will it take to cross a platform of 25 meters long। अब इसमें देखो पहले तो उसकी स्पीड मालूम करो यहाँ से, जो कि है 150/10 इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड उसकी जो है ना स्पीड है। अब वो प्लेटफॉर्म 150 मीटर्स लॉन्ग है और वो खुद जो है ना 150 और प्लेटफॉर्म 250, तो टोटल ये 400 हो गए। 400 को आप जो है ना किससे डिवाइड करोगे, उसकी स्पीड से 15 से, आंसर आएगा आपका 26.6 और समथिंग, तो इसमें जो है ना 27 आपके सेकंड्स राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49 फाइंड द मिसिंग टर्म 4 है 9 है 19 है 39 है, तो इसमें आप देखो तो ऑप्शन आर 59 69 79। अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, वो देखो जो 4 है उसको उसने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर +1 किया। इसी तरीके से 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर +1 किया। सही है, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई 2 करके +1 करा है। अब 39 को 2 से मल्टीप्लाई करो और +1 करो तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सी, यानी कि 79, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसमें जो है ना ये सिंपल आपकी मैथमेटिक्स से एक्सट्रीम्स को रेशियो प्रोपोर्शन वाला एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करो, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और x का वैल्यू फाइंड करो, सो दैट ऑप्शन वुड बी 7 राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन है, उसमें 51 क्वेश्चन इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 वाज ब्रोकर्ड बाय UN, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, तो ये वर्ल्ड बैंक ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 52 द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड प्राइमरली कंसर्न्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, टैक्स रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है।
Question 53. The blue helmets are associated with which international organization? World Bank, यूनाइटेड नेशंस, G20 और नेटो। तो ये यूनाइटेड नेशंस के साथ हैं क्योंकि ये पीस कीपिंग मशीन में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन 54. विच पाकिस्तानी माउंटेन इज आल्सो नोन एज सैवेज माउंटेन? नांगा पर्वत, केटू, खीरथर, त्रिशमीर। तो ये हमारा केटू है। क्वेश्चन 52. सार्क हेडक्वार्टर इज़ इन ढाका, काठमांडू, इस्लामाबाद, दिल्ली। तो ये काठमांडू में है। क्वेश्चन 56. हु रोट रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम? अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मौदूदी और दी शाह वलीउल्लाह। तो इसका राइट ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 57. द अल अक्सा मास्क इज लोकेटेड इन मदीना, यरूशलेम, कायरो, दमास्कस। तो ये यरूशलेम में, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये हमारी सेल्स टैक्स है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 59. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, यूएसए, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस और जो है फ्रांस, वियना, ऑस्ट्रिया। तो ये जो है ना जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। 59 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 60. द नोबेल पीस प्राइज 2024 वाज अवार्डेड फॉर स्ट्रगल अगेंस्ट जेनोसाइड, डिप्लोमेसी, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और जेंडर इक्वलिटी स्ट्रगल। तो ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में था, ऑप्शन सी। और ये आपसे क्वेश्चन है कि जो 2024 का नोबेल पीस प्राइज़ था वो किस कंट्री को मिला था या कहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला था। क्वेश्चन 61. द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज गोबी डिजर्ट, एंटार्कटिक, सहारा, अरबियन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, एंटार्कटिका। उसके बाद है द करेंसी ऑफ टर्कीज, दीनार, रियाल, लीरा, दरहम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो लीरा है। क्वेश्चन 63. द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन मैनर्ड, किनीज, मिल्टन फ्रेडमैन। तो ये जो एडम स्मिथ, ऑप्शन बी करेक्ट है। Question 64. The Paris Agreement of 2015 is primarily concerned with international trade, nuclear disarmament, climate change और refugee crisis। तो ये climate change के साथ है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। Question 65. The first Muslim Nobel laureate in science is Dr. Abdul Salam, Dr. Abdul Qadir Khan, Ahmad Diwali or Ibn Sina। So the right option is Dr. Abdul Salam, option A. Question 66. The national animal of Pakistan is lion, markhor, snow leopard, markhor। तो ये markhor है। क्वेश्चन 67. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और अभी कंट्रीज़ हो गई है, हेडक्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये जो है कायरो, जिद्दा, अनकरा, दोहा। तो ये जिद्दा में, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 68. द हेड ऑफ पाकिस्तान स्टेट इन पाकिस्तान इज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ। तो ये प्रेसिडेंट होता है, और अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाए तो वो आपका पीएम होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, बी। उसके बाद क्वेश्चन 69. द कराकरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ ईरान, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया। तो ये हमारा चाइना है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 70. द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, इस्कंदर मिर्ज़ा। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 71. द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डेलहाउस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, लॉर्ड डेलहाउस। क्वेश्चन 72. द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन पाकिस्तान इज खोजक, लोवारी, कराकरम, बुलान। तो ये जो है ना लॉरी है, लॉरी टनल। क्वेश्चन 73. द G20 समिट 24 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, रियो डी जेनेरियो, बर्लिन, कैनबरा। तो ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, रियो डी जेनेरियो, यानी कि ये ब्राज़ील में हुई थी। क्वेश्चन 74. द ग्रुप ऑफ 20 इज प्राइमरली अ फोरम ऑफ मिलिट्री अलायंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कल्चरल एक्सचेंज। तो द राइट ऑप्शन इज इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके अलावा 75. द नोबेल लॉरेट नोन फॉर माइक्रो फाइनेंस वर्क इज मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन, बेन की मून और बिल गेट्स। तो राइट ऑप्शन इज मोहम्मद यूनुस। अब हमारा लास्ट सेक्शन है MS ऑफिस का। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच व्यू शोज द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रिंट लेआउट। इन एक्सेल $A$1 रिप्रेजेंट रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस को शो करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78. इन पावर पॉइंट विच फीचर अलाउज यू टू अप्लाई अ कंस्टेंट सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स टू ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन? एनिमेशन, स्लाइड मास्टर, टेम्पलेट, डिज़ाइन आइडियाज़। तो ये आपका स्लाइड मास्टर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके अलावा क्वेश्चन 79. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक? कंट्रोल I, कंट्रोल H, कंट्रोल K, कंट्रोल L। तो द राइट ऑप्शन इज कंट्रोल K। क्वेश्चन 80. इन एक्सेल वर्कशीट सेल A1 कंटेन्स द डेट 1 जनवरी 2023, व्हाट विल बी द फार्मूला A1 + 15 रिटर्न? तो ये आपका 16 जनवरी उसको बना देगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 81. इन पावर पॉइंट
Which type of file extension is used for a presentation that opens directly into the slideshow view? PPTX, PPSX, POTX, THMX. So the right option is B, PPSX, क्योंकि इसमें ये स्पेशलाइज्ड ये वर्जन होता है, जो PPTX है वो इसका स्टैंडर्ड वर्जन है. Question 82. In Microsoft Word, which feature is used to combine a main document with a data source to produce personalized letters or emails? Compare, mail merge, track changes, macros. So the right option is mail merge. 83. In Excel, which chart type is best suited for showing trends over continuous period? Pie chart, line chart, bar chart और dognut chart. तो ये line chart होता है. Question 84. What is the purpose of the Format Painter tool in MS Office application? To change the background color of page, to copy formatting from one object or text and apply it to another, to paint custom shapes, to correct grammar and spelling. So right option is B. 85. The default font in MS Word is Arial, Calibri, Times New Roman, Cambria. So right option is B, Calibri. In PowerPoint, what is the presenter view? A view for the audience to see the slides on their devices, a special view that allows the presenter to see notes, a timer, and next slide while the audience sees only the current slide. A view to create and edit slide content, a view to rehearse timings. So option B correct है. Question 87. In Word, which tab would you use to insert a table of contents? Home tab, insert tab, references tab, layout tab. तो ये references है, option C correct है. Question 88. In Excel, what does the freeze panes feature do? Locks specific rows and or columns so they remain visible while scrolling, prevents other users from editing the worksheet, hides the selected rows and columns, splits the window into separate panes that can be scrolled independently. So the right option is A. Which key is used to select non-adjacent cell in an Excel worksheet? Shift key, Control key, Alt key, Tab key. तो ये Control key होता है. Question 90. In PowerPoint, an animation that happens when you move from one slide to the next is called custom animation, transition, motion path, trigger. तो ये आपकी transition होती है. Question 91. In a word, what is the purpose of the styles gallery? To change the page orientation, quickly apply to set of formatting choices, to check the document for plagiarism, to change the language of the document. तो ये इसका ऑप्शन है, to quickly apply a set of formatting choices to text. ऑप्शन B करेक्ट है. Question 92. In Word, Control plus Z performs redo, copy, save, undo. तो इसका ऑप्शन जो है D है, undo. Question 93. A slide sorter view in PowerPoint is primarily used to writing notes for each slide, designing individual slide layouts, viewing all slides in a thumbnail form to easily recognize them, recording voice over narration. Option C correct है. Question 94. In Word, which option allows you to see the non-printing characters like spaces, tabs, paragraphs, marks, etc. तो ये जो है ना शो हाइड, रूरल, नेविगेशन पेन और थंबनेल, इसका राइट ऑप्शन है शो और हाइड फीचर. उसके अलावा क्वेश्चन 95. इन MS Word, टू चेक स्पेलिंग एरर्स वी यूज़ Control plus C, Control plus V, F7, F5. तो जो ना F7 हम इसको यूज़ करते हैं. Question 96. What is the default file extension for a Microsoft Word document? Doc, docx, .x और txt. तो ये docx है, ऑप्शन B करेक्ट है. उसके अलावा क्वेश्चन 97. In PowerPoint, which of the following is not a type of placeholder that can be added to a slide layout? Content, picture, chart or macro. So the right option is macro. Question 98. Shortcut to insert a new slide in PowerPoint is Control plus S, Control plus M, Control plus N, Control plus Shift plus N. So the right option is Control plus M. The thesaurus tool in MS Word is used to find spelling errors, synonyms and antonyms, grammar mistakes, word count. So the right option is B, synonyms and antonyms. The last question is in Excel, which feature allows you to display only the rows that meet specific criteria? Data validation, auto filter, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पिवट टेबल. सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑटो फिल्टर. तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर. उम्मीद करता हूँ आपको इससे जो है ना अंदाज़ा हो गया होगा कि हाउ यू आर गोना हैव द टेस्ट इन द रियल एग्ज़ाम, और इससे आप जो है ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी अच्छे से असेस कर सकते हैं. तो लाइक और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम.